So in today's class, we will directly go with the flight performance. For example, like when you size the aircraft, then if you are flying in the atmosphere, then what will be the thrust required, what will be the drag required, what will be the L by D, right? So all these concepts we will cover in this class. For example, like when you flying at a steady state level flight, for example, let's say this is the case, and when I say a steady state level flight, that means steady means anything is not changing in the dynamic. Okay, a level flight, that means by seeing the wing you will say the name whether it is level or not level. For example, both the wing are this and this wing are aligned, right? There is no deflection like this. It is a level with respect to the horizontal. So, and anything is not changing with the time. So, steady state means clear, right? Clear to you, right? So climbing flight is also level flight, but this is a steady state level, and that can be a steady level climb flight. Okay. So, but like for example, when the aircraft is flying, then what amount of lift it is generating, and we know that when aircraft is flying at a steady state level flying, lift equal to weight and thrust equal to weight, and this one is a very approximated equation. When I will derive the equations of motion later, then you will see which term you will approximate, then you will get thrust equal to drag and lift equal to. You will be very surprised. For example, like when we assume that okay, pitch angle is very small, and there is no bank involved, and there is no thrust angle is involved, and so much approximation when you do put, and then you will get to know that lift equal to weight and thrust equal to drag. Okay, but first, for example, like we have to think some common sense, not directly jumping into the mathematics. Okay. Later we will get to know that how we have derived lift equal to weight and thrust equal to drag. Okay, so now this is a steady state level flight. That means aircraft is moving with a constant velocity. Okay, and it is not dipping. The aircraft is not dipping and not increasing its altitude, right? So that means at all the time lift is balanced by the weight. So I can write first equation, lift equal to. Okay, and now aircraft is moving and with a constant velocity. So for example, let's say the engine is providing the thrust and aircraft is not accelerating. Okay, so that means what the amount of drag which is produced by the air while the aircraft is flying. Okay, the thrust is that much only generated to overcome the drag. The amount of thrust which is generated is only used to overcome the drag, not beyond that value or not less than that value. So exactly mathematically we can say thrust required equal to drag, right? Thrust required. And you may observe this is very simple equation, but it is not a very simple equation at all. When you do the equation of motion in a generic case, then you have to approximate the things, then you will get to this. Okay, so we can combine these two equations and we can reach to this W divided by L by D. This way. Okay, these are things. Okay, so as a designer, you have to have a feel for the number. Okay, so the best way to get the feel for the number, the first thing is you have to at each and every step you have to be very careful, like what is the significance of this, what is the significance of that. Okay, what should be the ranges of this value, and if I am getting this value, it is making sense or not. Okay, so each and every time you should question yourself, like whether how it is coming, what is the value, it is making sense or not. So like that, this time to time you will get the experience, you will get the number. So now thrust required, I can say thrust required, right? W divided by L by D. So L by D is nothing but the aerodynamic efficiency. The name here, aerodynamic efficiency, means every time I want to get more lift, but at the less cost of drag.
एवरी टाइम। मतलब हमें लिफ्ट चाहिए ज़्यादा और ड्रैग की जो पेनल्टी है वो हमको कम देगी। ड्रैग कम होगा तो इंजन से पावर भी कम लगेगा, बट समटाइम्स वी वांट द ड्रैग ड्यूरिंग द लैंडिंग, कि ड्रैग हमारे पास ज़्यादा है तो स्पीड हमारी कम होगी, तो हमें शॉर्टर रनवे की जरूरत पड़ेगी। ईच दैट आई विल टेल यू लेटर, सो वी रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग ईच एंड एवरी टाइम, राइट? कि कहीं कहीं ड्रैग आपके फायदे के लिए होता है और कहीं कहीं ड्रैग आपके लिए ठीक है। तो इसी वजह से बोला कि एयरक्राफ्ट डिज़ाइन में कंप्रोमाइज इज एवरीवेयर इन एयरक्राफ्ट डिज़ाइन। नथिंग यू विल गेट, सी समथिंग यू आर गेटिंग इज समवेयर यू आर लूजिंग आल्सो। सो वो कंप्रोमाइज होना चाहिए। कंप्रोमाइज सब अच्छा कंप्रोमाइज होगा ना तो अच्छा एयरक्राफ्ट बनेगा, राइट? तो L/2 अब क्वेश्चन आता है कि L/D की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। द क्वेश्चन कम्स लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L/D, ओके? सो for example I can if you know the L/D value, then if you already estimated, then you can directly come across that this much thrust required we need to make a possible flight, right? Okay, now if you write thrust required to see lift equal to weight, when I say I can write half rho v square s into c, okay? This remember, okay? So how many terms are involved here? 1, 2, 3, 4. 4 terms involved here. Now if you are flying at a constant altitude, then rho will be constant. And when I say rho equal to constant, then you should also have a feel for that rho. What is the rho value at sea level? What is the rho value at higher altitude? तो इसकी फीलिंग हो, और इसके लिए मतलब कोई, अब आप कॉमन सेंस भी यहाँ पे यूज करोगे ना, एटलीस्ट तुम ये बता सकते हो कि अल्टीट्यूड ऊपर जाने पर डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी। सिंपल तरीका, ठीक है? फॉर एग्जांपल मान लो ये कमरा है, ठीक है? अब यहाँ सारी एयर है, मेरे हाथ को ऐसा अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर मेरे हाथ पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये, तो सारी एयर इसके ऊपर जुटती है, वो प्रेशर लगा रही है, राइट? अगर मैं अपना हाथ यहाँ कर दूँ, क्योंकि थोड़ा एल्टीट्यूड बढ़ गया है, तो ये वाली एयर नहीं लगाएगी, ये वाली सारी एयर ऊपर लगेगी, ठीक है? तो जब प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो एयर ज़्यादा थिक रहेगी, राइट? इसका मतलब जब हम ऊपर जाएंगे तो एल्टीट्यूड के साथ साथ डेंसिटी जो है वो कम होती है। कैलकुलेशन किया, 5 किलोमीटर पर तुम्हारा डेंसिटी आ गया 1.56 kg/m², तो तुरंत इमीडिएटली चेक करो, नहीं गलत, एच से 1.225 जो कि सी लेवल पर डेंसिटी उससे कम ही होना चाहिए। तो हर स्टेप पे जब आगे बढ़ो ना, तो सोच लो कि नंबर जो कैलकुलेट किया है वो सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट डिज़ाइन है जो डिज़ाइन फ्लाई करेगा, उसमें अगर कुछ गड़बड़ी कर दी ना तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। एविएशन में मतलब नहीं एक्सेप्ट होता है ये सारी, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट डिज़ाइन मतलब एक आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, आपको हर एक नॉलेज, डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम पूरा एक्सपर्टीज होनी चाहिए, पर जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो उसकी तुम्हें फील होनी चाहिए। ये नहीं कि नंबर निकाल दिया तो बस, फील होनी चाहिए। विंग लोडिंग की फील होनी चाहिए कि वेट है, इतना एरिया लिफ्ट कर दिया, फील होनी चाहिए। इतना पावर रिक्वायर्ड है, फील होना चाहिए। L/D इतनी वैल्यू फील होनी चाहिए, डेंसिटी इतनी आ रही, फील होनी चाहिए, सब नंबर का फील होना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, तुम्हें एक अच्छे डिजाइन पर। तो अब ये लिफ्ट क्या है, वी पे इसका डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन वी, एस, CL एंड रो। ओके, सो नाउ अब पे अटेंशन टू दिस एक्सप्रेशन। The question comes, how will you increase the speed? How will you increase the speed? By putting the throttle forward. मैं इंजन से थ्रस्ट बढ़ा दिया, अब क्या होगा, जो थ्रस्ट रिक्वायर्ड इस कंडीशन में था उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेगा एयरक्राफ्ट, तुरंत क्लाइंब करेगा, तुरंत क्लाइंब करेगा। मतलब अगर एयरक्राफ्ट ऐसे जा रहा है, आपने फुल थ्रॉटल डाल दिया, क्लाइंब कर जाएगा, क्योंकि आपका जो पावर रिक्वायर्ड के उस इंस्टेंट पर जो पावर रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हो गया, तो तुरंत क्लाइंब कर जाएगा। पर तुमको तो मेंटेन करना है लिफ्ट इक्वल टू वेट ना, मतलब वही एल्टीट्यूड मेंटेन करना है, तो क्या करोगे आप, आपको समहाउ डाउन करना पड़ेगा एयरक्राफ्ट की नोज को। ओके,
नोज को डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ बताओ, फॉरगेट अबाउट व्हाट आई सेड, नोज डाउन करना पड़ेगा। क्या क्या तुम रिड्यूस करके लिफ्ट को वही मेंटेन कर सकते हो? सी दिस प्लेस, इफ यू आर फ्लाइंग एट अ वन पर्टिकुलर एल्टीट्यूड, रो इज कांस्टेंट and you have already sized your aircraft, then S is constant, and so what is the value, so what is the term remaining? CL. तो CL को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। CL डिक्रीज कैसे होता है? दिस वैल्यू विल बी कांस्टेंट, CL अल्फा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ विंग एंड टेल, ठीक है। CL अल्फा लेट्स से इज कांस्टेंट एंड देन CL नॉट आल्सो फिक्स हो गया, राइट? सो नाउ you can change the elevator deflection, you can deflect the elevator in order to change the CL. जो पीछे सरफेस लगा है इसको आप डाउन करोगे तो एयरक्राफ्ट नोज डाउन होता है, और एयरक्राफ्ट इसको अप करोगे तो नोज अप होता है। क्योंकि अगर आपने उसको डाउन किया तो फिर उसके बाद आपका इधर एंगल ऑफ अटैक बढ़ेगा, लिफ्ट यहाँ जनरेट होगी, CG आपका समवेयर है, फॉर एग्जांपल मान लो CG यहाँ है, तो वो CG का अकॉर्डिंग नेट मोमेंट देगा जो कि नोज डाउन होगा। एक सिरा अगर ऊपर जाएगा तो एक सिरा ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। मैंने कहा था ना कि आप एक तराजू की तरह समझो इसे, एक पल्ले पे आपका विंग है, दूसरे पल्ले पे आपका टेल है। तराजू में क्या होता है कि आपको वेट डाल करके क्या कहते हैं, आप बैलेंसिंग होती ना, अज्यूम सम हाइपोथेटिकल थिंग्स, नीचे से वेट डाल दो, मतलब आई मीन एयर, ऐसे बैलेंसिंग, ठीक है। तो जरा सा डिसबैलेंस होगा तो एयरक्राफ्ट डिसबैलेंस होगा, राइट? तो इस केस में क्या डिसबैलेंस ही तो कर रहे हो, यहाँ थोड़ा सा फोर्स बढ़ा करके आप पिच डाउन कर रहे हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जब आप व्हेन यू डू दिस देन you are what you are doing, you are reducing the angle of attack actually. When you are deflecting the down, you are decreasing the angle of attack, okay. So when you are deflecting the down, angle of attack गिरेगा, if angle of attack decreases then what is the lift of slope also? Typical, this is nothing but the symmetrical, and this one is for the camber. So in both the cases, whatever you have chosen, whether it is symmetric or camber, in both the cases when angle of attack decreases, or lift will decrease, right? So that is how you maintain lift equal to weight. So at least by explaining the flight performance concept only, I have told you that how this two control works. One is throttle and second is elevator. When you put the throttle forward, aircraft tries to climb up. If you at the same time when you put the elevator down, aircraft will try to nose down movement. That means by using both the controls, elevator and throttle, you can maintain the trim flight, a steady state level flight you can maintain. ये दो कंट्रोल्स जरूरी होते हैं, but later I will tell you to take coordinated and all the four controls के साथ। तो हर what I am trying to say, हर एक एक्सप्रेशन में जाके देखो कौन सा पैरामीटर किस पे डिपेंडेंट है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, ठीक है, और वो पैरामीटर जिस पे डिपेंडेंट है वो किस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इससे ऐसे चलोगे क्या कहते हैं, then you will get the very good idea of how to design the aircraft. Okay. So now, what was the speed? Okay. So each and every time when I write, for example, let's say half root v square AC to CL. So this is constant value. If you're flying one latitude, this is constant value. This is constant value. So v square CL is completely constant, right? Okay. This is weight, right? This is also constant. So v square CL is constant. That means roughly when you take the velocity at this axis and CL at this axis, so this weight, this curve, you will get something like this. And that means if you are increasing the velocity, your CL is going down. Okay. अब आप पहले रफली प्लॉट करने के लिए क्या कर सकते हो, v एक्स एक्सिस पे v को v स्टार से स्टार्ट करो और 2 और 3 टाइम्स v स्टार करके ये एक्सिस बना दो और सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, CL की वैल्यू निकाल करके y एक्सिस पे पुट कर दो, प्लॉट कर दो। एज सिंपल है।
स्केल भी डिसाइड करने की का तरीका मैंने बता दिया कि स्टार्ट करो वी स्टार से, क्योंकि वी स्टार के पीछे लेना बेकार है। आप स्टार स्पीड की डिफिनेशन क्या होती है? स्टार स्पीड मिनिमम स्पीड एट विच यू कैन सस्टेन द लेवल फ्लाइट। तो उसके स्पीड से नीचे स्पीड पर बात करना डजंट मेक एनी सेंस, राइट? सो आप मिनिमम स्पीड स्टार रखो, और जो जनरली क्या होता है, कोई भी इंजन लोगे तो 2 टाइम्स ऑफ वी स्टार प्रोवाइड कर देता है, रफली, आई एम सेइंग रफली, ओके? आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी ले सकते हो, वो सक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है? और सब सीएल की वैल्यू प्लॉट करो, पर सीएल की वैल्यू उतना तक प्लॉट करना जितना सेंस हो। अब ये नहीं कि -2 कर दिया, इट डजंट मेक सेंस। लेफ्ट कर स्लोप ऑफ वो एयरफॉइल का कर्व देखो सीएल नेगेटिव कितना तक जाता है, ठीक है? यहाँ पर तो फिक्स है, वी स्टॉल पर रखा सीएल मैक्स आ जाएगा। तो एक ग्राफ आ गया तुम्हारा। तो ये एक दिखाता है कि ये ग्राफ दिखाता है कि आपकी डिफरेंट वेलोसिटी पर आपका सीएल क्या होगा। आपके स्टार पर सीएल मैक्स होगा, वेरी हाई स्पीड पर दैट कैन बी सीएल 0.01। सो अगर एयरक्राफ्ट बहुत हाई स्पीड से फ्लाई कर रहा है, मैक्स स्पीड से फ्लाई कर रहा है, तो तुम कर सकते हो अच्छा इसका सीएल जो है वो 0.01 0.02 होगा, ठीक है? आपको फीलिंग आ रही ना? आपको फीलिंग इस वजह से आ रही कि प्लॉट किया है, इसके पीछे साइंस समझिए आप, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग, ओके? नाउ सो वन प्लॉट इज रेडी, राइट? दिस प्लॉट इज नंबर 1 प्लॉट, ओके? नाउ when you write, then second plot will be CD equal to, let's say, CD naught plus KCL square. Okay, so now here 2 terms is there, okay? First one is CD naught and second one is K with the CL, okay? So अब इस टर्म को समझो, प्ले अटेंशन कीजिए। हवा, air is flowing all over the body, right? Fuselage, wing, vertical tail, associated with this vertical and horizontal tail there is elevator, rudder, and here wing, aileron, flap, सब पे एयर फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो शेप की वजह से जो ड्रैग आएगा ना, वो CD नॉट होगा। अब मैं इसी प्लेन को ऐसे कर दूंगा, तो CD नॉट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, ठीक है? आपने स्ट्रीमलाइन बॉडी को ब्लॉक बॉडी बना दिया, ठीक है? आप खुद सोचो, मोटरसाइकिल पर बैठे हो, कार्डबोर्ड इतना बड़ा अगर मान लो आपके हाथ में है, तो अगर आप ऐसे करोगे, ठीक है, तो आपको ड्रैग नहीं, वो बाइक से ज़्यादा पावर नहीं लगाना पड़ेगी अगर आप स्पीड मेंटेन करने के लिए। जैसे आपने ऐसे किया, तुरंत बाइक स्लो होने लगेगी, तो आप एक्सीलरेटर ज़्यादा डालोगे, पावर ज़्यादा लेगा, क्योंकि ड्रैग ज़्यादा होगा। थ्रस्ट रिक्वायर्ड इक्वल टू ड्रैग, राइट? ड्रैग ज़्यादा, थ्रस्ट रिक्वायर्ड ज़्यादा। कहाँ से आ रहा था? इंजन से आ रहा था, ठीक है? अब KCL स्क्वायर होता है लिफ्ट डिपेंडेंट ड्रैग, मतलब जितना लिफ्ट ये नहीं कि डायरेक्टली वर्टिकली अप है, नो। लिफ्ट क्या होता है कि मान लीजिए, फॉर एग्जांपल लाइक आई विल टेल यू मे बी इन सम फ्री टाइम व्हाट इज द थ्योरी ऑफ द लिफ्ट। तो थ्योरी ऑफ द लिफ्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द बर्नौलीज, न्यूटन्स लॉ, सर्कुलेशन। देयर इज अ मेनी वे टू डिफाइन द लिफ्ट। तो कोई मेथड कहीं फेल होता है, कोई मेथड कहीं फेल होता है, ठीक है? तो सबके बारे में मैं लिफ्ट के बारे में बताऊंगा कि बर्नौली जहाँ फेल हुआ वहाँ सर्कुलेशन से लिफ्ट जनरेट करती है, ठीक है? और यहाँ पर पहले समझो कि लिफ्ट कॉमन सेंस से समझो कि नेट प्रेशर जनरेट हुआ, ठीक है? पर नेट प्रेशर वर्टिकली अब थोड़ी ना जनरेट हुआ, रिजल्टेंट फोर्स हम एंगल पर है, ठीक है? तो अब एक कंपोनेंट लिफ्ट होगा और एक कंपोनेंट ड्रैग होगा। लिफ्टिंग लाइन थ्योरी में जब आप एरोड्राइव में जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो L sin phi L cos L, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ना, ये इसका एक कंपोनेंट लिफ्ट होगा, एक कंपोनेंट ड्रैग होगा। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन देयर इज ए L sin alpha is nothing but the drag. H sin alpha where is the induced angle of attack. ओके, सो लिफ्ट डिपेंडेंट है, मतलब लिफ्ट जितना बढ़ाओगे ड्रैग बढ़ जाए, क्योंकि लिफ्ट अगर बढ़ाया, नेट प्रेशर अगर बढ़ा, तो ये वाला कंपोनेंट बढ़ेगा ना, तो जो इन दोनों का कंपोनेंट होगा, लिफ्ट भी बढ़ेगा, ड्रैग भी बढ़ेगा। सो नाउ दैट पार्ट इज KCL स्क्वायर, ओके? नाउ रिसर्चर्स हैज फाउंड आउट द K इज नथिंग बट द 1/pi into E into aspect ratio, ठीक है? अब फिर से 2 टर्म आ गया, E आया, एस्पेक्ट रेशियो आया।
ठीक है। तो ई बताता है, ई इज ए ओस्वार्ड इफिशिएंसी फैक्टर, राइट। ये बताता है कि कितना बढ़िया लिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है आपके विंग पर। आपका पूरा अगर इलिप्टिकल है तो आपका क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। और मान लीजिए कहीं लिफ्ट गड़बड़ाई, मतलब ये मान के चलते हो आप कि यहाँ से लिफ्ट आपका रूट पे मैक्सिमम होगा और यहाँ पर जाके एकदम टिप पे जाकर के क्या कहते हैं आपका 0 हो जाएगा। ये आप मान के चलते हो इलेक्ट्रिकल लिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये वन साइड विंग का मैंने ड्रा किया, ठीक है। ओके, ठीक है। अब मान लीजिए एयरक्राफ्ट सरफेस पे कहीं पे कुछ पार्ट रफ हो या कुछ और भी लगा है, दूसरा कंपोनेंट पाइलान लगा हुआ है इंजन का, वो लिफ्ट कुछ डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। लीजिंग ए स्लैट फ्रेम लगे कुछ डिस्टर्ब हो जाएंगे। फ्लो को टर्बुलेंट बनाने के लिए यहाँ कुछ ऊपर सरफेस लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लो एक्सपोज टू द एयर, ठीक है, वो डिस्टर्ब कर देंगे। तो हो सकता है ये लिफ्ट जो है आपकी ऐसे ना हो करके ऐसा हो सकती है, मे बी दैट केस, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है लिफ्ट। तो वो फैक्टर को काउंट करने के लिए ई की वैल्यू 1 ना लेकर के हम पॉइंट्स डिपेंडिंग अपॉन द एस्पेक्ट रेशियो, देयर इज एम्पिरिकल रिलेशन 0.8, 0.7, 0.8, मतलब जितना क्लोज टू 1 होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। Now the second one is an aspect ratio. Okay. So now see this aspect ratio. सिंपल डिफिनेशन मैंने बताई थी। एस्पेक्ट रेशियो मतलब दो चीज़ों का रेशियो होता है, लंबाई बटे चौड़ाई। तो लंबाई मैंने ये बोल दिया स्पैन को, और चौड़ाई मैंने कॉर्ड बोल दिया, तो B/C को मैंने एस्पेक्ट रेशियो बोल दिया। अगर एस्पेक्ट रेशियो बहुत ऊपर और नीचे C बार का मल्टीप्लाई कर दिया तो B/C मेरा विंग का एरिया बन गया, इक्विवेलेंट टू द रेक्टेंगुलर एरिया, एंड वी कॉल इट एज ए B²/AC द एस्पेक्ट रेशियो। जनरल डिफिनेशन। नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स जो प्रेशर साइड है दैट विल बी दैट प्रेशर ज़्यादा होगा और सक्शन साइड में कम होगा। इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि ये बता दूं मैं कि सक्शन साइड से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है लिफ्ट के लिए, ठीक है। अगर मैं एयरफॉयल बनाऊँ, देखिए एस्पेक्ट रेशियो पे मैं रुका हुआ ना, ठीक है। अगर मैं एयरफॉयल ले लूँ ऐसे, तो ये एरिया जो है ना, ये एरिया जो है लिफ्ट जनरेशन के लिए अपर सरफेस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऐसे ले लूँ दो एयरफॉयल, एक कैम्बर ऐसे ले लूँ और दूसरा कैम्बर ऐसे ले लूँ, जिसमें मैं फ्लैट बॉटम कर दूँ, फ्लैट बॉटम करने से उतना इफेक्ट नहीं आएगा अगर मैं टॉप सरफेस को बॉटम कर दूँ। सक्शन साइड इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, मैं थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट जनरेट कर रहा हूँ कि आप देखो इस तरीके से भी लिफ्ट का भी सोच सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, घूमेंगे ऐसे, यहाँ आएगी ऐसे घूमेंगी, राइट। तो इस सर्कुलर पाथ पे जा रही है, राइट। तो कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ पे जाता है तो कौन सा फोर्स जनरेट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है कि नहीं होता है। तो वो खींचेगा कि नहीं खींचेगा, राइट, उस साइड में। तो ऐसे सोच सकते हो कि अरे मतलब ठीक है, बर्नौली पढ़ा था, न्यूटन पढ़ा था, पर कभी ये दिमाग में सोचा था कि सर्कुलर पाथ पे ऐसे जा रही तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करेगा जो कि एयरफॉयल को रिसेप्ट या विंग को रिसेप्ट अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा इस साइड में, वहीं से लिफ्ट, ऐसा सोच सकते हो। दूसरा ये भी सोच सकते हो कि अगर मैं मान लो बाउंड्री लेयर हटा दूँ इससे तो क्या लिफ्ट जनरेट होगी अपने आप। जितना कंफ्यूज होगी तुम उतना एयरक्राफ्ट डिजाइन अच्छा सीखोगे, तुम मेरे सारे सब्जेक्ट अच्छे सीखोगे। तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आज क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, कल को मेरे को आंसर देना, मैं बाउंड्री लेयर हटा दूँ, एयरफॉयल हटा दूँ बाउंड्री लेयर, क्या लिफ्ट जनरेट होगी? टू थिंक एंड टेल द आंसर। तो मैं ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट बताना चाह रहा था कि अगर लिफ्ट जनरेट होती है तो टॉप एंड बॉटम दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर दोनों में से ज़्यादा कौन सा रिस्पॉन्सिबल? सक्शन साइड इज मोर इम्पोर्टेंट। नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो एयर की हमेशा वो रहती है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे फ्लो करेगी, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ करेगी। तो अब देखो इस साइड भी फ्लो करके ऊपर आने की कोशिश करेगी, राइट।
यहाँ पे आकर के अगर विंग छोटा है तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी आने की। तो दैट इज हाउ द वर्टिस इज क्रिएटेड, राइट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस एंगल ऑफ अटैक, राइट। तो अगर एस्पेक्ट रेशियो ज़्यादा होगा तो यहाँ तक आते आते अपनी एनर्जी थोड़ा लूज कर देगी। तो यहाँ पर जब वो कल करेगी एयर तो उसकी स्ट्रेंथ कम रहेगी, मतलब वो इंड्यूस एंगल ऑफ अटैक कम रहेगा उसका, राइट। आई मीन टू से दैट्स। तो अगर एस्पेक्ट रेशियो ज़्यादा है तो के की वैल्यू कम रहेगी। इफ द एस्पेक्ट रेशियो डिक्रीजेस, एस्पेक्ट रेशियो इंक्रीजेस, देन के वैल्यू डिक्रीजेस। तो अगर के वैल्यू डिक्रीज होगी तो कितने भी सीएल पे अगर एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा, इंड्यूस ड्रैग का कंपोनेंट कम रहेगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं सिंपल, ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है और एक ग्लाइडर एयरक्राफ्ट है, दोनों में से और दोनों सेम स्पीड पे फ्लाई कर रहे हैं, तो दोनों में से इंड्यूस ड्रैग किसमें कम होगा? ग्लाइडर पर, ठीक है। सिग्निफिकेंस समझ जाओगे कि इसके पीछे का फंडामेंटल्स क्या है, साइंस क्या है, तो फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं है ना कभी एक्सप्रेशन भूलोगे ना एक्सप्रेशन में जो टर्म सिट है उसको नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन का चीज़ क्लियर हुआ, सी डी + CD नॉट + के सी स्क्वायर, ठीक है। पर देखो हम क्या करते हैं कि एयरक्राफ्ट के शेप को भी बीच बीच में चेंज कर देते, मतलब मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि एलिवेटर डाउन किया या एलिवेटर अप किया, वहाँ से भी तो कुछ शेप चेंज हुआ ना, हर एक छोटा सा पोर्शन से शेप चेंज। स्पॉइलर अप कर दिया, फ्लैप डाउन कर दिया, ठीक है। तो उस टर्म को ऐड करने के लिए मैं आई कैन राइट हियर CD delta into delta. Delta means delta that can be elevator also, delta can be flap also. तो कोई भी कंट्रोल सरफेस अगर आप डिफरेंट कर रहे हो, so that is delta. Okay. And you also have a feel for this number. When you calculate, you will find out that it is always less than 5 to 4% compared to all over the drag. ठीक है। तो कल को मान लो तुम्हें ये वैल्यू ना पता हो, then based on the total drag, what we have assumed, you can take it at approximately 5%, 4% for our drag. So that is CD. Okay. Now at all speed you will have a CD also. ठीक है। So now you can plot the value of CD versus V also. Okay, CD versus V. So एक plot here होगा, now second plot is this. Now you have a CL also, you have a CD also. Divide CL by CD. Okay, CL by CD. Now versus V. Now this is a third plot. Okay, then you will see here in CL by CD plot, you will get to know this kind of curve, where this will be the L by D and this will be the velocity. So at a higher speed, your L by D is low. Now tell me why it is low. Why the L by D is low? Because at a high speed, your drag will be more. So L by D will be less. Okay. L you will try to maintain the same, right? Every time, right? Because L left equal to weight. But आप स्पीड बढ़ा करके एलिवेटर डाउन करके ड्रैग बढ़ा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो L by D ऑटोमेटिकली कम होगा, राइट? तो ऐसे ड्रॉप होगा L by D। पर यहाँ भी एक साइन समझो, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमा जो है ना, मैक्सिमा आर दिस डिपेंडेंट अपॉन स्पीड और नॉट, यू जस्ट टेल। We'll drive them mathematically and we'll check, okay? CD equal to CD naught plus KCL square. I mean to say when you design the aircraft, your this maximum point will be independent of flight speed. I have plotted the L by D versus V, right?
But here I am saying at a maxima your L by D is independent of speed. Yes, confusing question है थोड़ा, but mathematically okay. So now you divide this by CL. CD naught CL KCL. Why I have divided by the CL? Because I want to work on CL by CD or CD by CL. That is why I have divided by CL. So see in equation whatever so far I am dividing, I also telling the reason behind it. Okay. So now you take this value as x. So x equal to CD naught by CL plus KCL. Okay. Now in mathematics, what do you do for checking max and minima? मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए क्या करते हो? डिफरेंशिएट करते हो. डिफरेंशिएट करने के बाद उसको इक्वल टू 0 करते हो. ठीक है, क्योंकि अगर वो मैक्सिमा है तो उस पर जो स्लोप रहेगा तो वो पैरेलल होगा वाई एक्सिस से. तो पैरेलल होगा तो डी वाई बाई डी एक्स 0 कर दिया. तो डी वाई बाई डी एक्स को 0 रखने का रीज़न ये है कि भाई एक्स एक्सिस से पैरेलल है. ओके. फिर तो वो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है. भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. तो दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है. तो यहां से अगर घट रहा है तो मैक्सिमा है, यहां से बढ़ रहा है तो मिनिमा है. ठीक है. तो एनी हाउ we'll differentiate with respect to CL. Then this is CD naught CL square and K. And when you equate this to 0, you will get to know the CL is under root CD naught by K. Okay, and you double differentiate. If you double differentiate, you will get to know that 2 CD naught CL cube, right? Right? K is constant or differentiation will be 0. So CD naught positive, CL positive, so it is positive, right? तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो क्या है? मिनिमम है, मैक्सिमम है? ओके. मिनिमम है, राइट? तो मतलब CD बाई CL मिनिमम है, तो CL बाई CD क्या होगा? मैक्सिमम होगा. अरे जो चीज मिनिमम हो उसका इनवर्स मैक्सिमम होगा ना. ठीक है. तो L बाई डी मैक्स. अब पीछे जाओ ग्राफ में एंड टेल दैट सबसे ऊपर वैल्यू कौन सी है? यही तो मैक्सिमा है. तो दिस पॉइंट वी कैन कॉल इट एज L बाई डी मैक्स. अब L बाई डी मैक्स कैसे बना? ऐसे बना. L बाई डी मैक्स when CL equal to under root CD naught by K. and अगर मान लीजिए आप CL की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, so you will get to know that CD equal to CD naught plus K, and this is CD naught by K. This will get cancelled. So CD naught to CD naught. Okay. This is CD. Okay. Now tell me that what is CL by CD max, which is nothing but the under root CD naught by K, CL value, and divided by 2 CD naught. Okay. So now this will be approximately under root, not approximately, it is exactly CD naught K. Okay. So for our case, let's have a calculate what is L by D max for our case. For our case, assume CD naught equal to
0.04 and E equal to 1 and tell me L by D max. See, I am assuming CD not equal to 0.04. I am that can be 0.02 also, 0.03 also. But to be more conservative side, I have taken 0.04. And later I will take you take 0.05 instead, because you will be having a 4 rotor also, right? 8 rotor or 4 rotor. That also will provide CD naught when you take lift off or transition or color light. You calculate and tell me what is L by D max you are getting. What is aspect ratio? What was the aspect ratio? 10, right? E is 1, right? So what is K? 1 upon pi into 1 into 10. So can you tell me how much it is coming? 3.71 approximately pi value, right? So 1 upon 37.1. How much you are getting? 0.03. Okay. So tell me CD naught, put K value and CD naught value under root multiply by 2 and then reverse how much? At least you will get 10. Since you are attending the aircraft design lecture, unmanned aircraft design lecture, you should all have one good calculator. Calculator is must. How much? 12.9 ना, ठीक है? तो approximately I can approximate 13. देखो, with my sense I told that क्या 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे तुम भी लोग कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके बिल्डअप करो. कैलकुलेट करने से पहले ये प्रेडिक्शन होना चाहिए कि इतना ही आएगा, इसके आसपास ही आएगा. अब देखो, सी द एक्सप्रेशन ऑफ L by D max और CL by CD max. L by D x that means in dimensional case and CL by CD that means non-dimensional. अच्छा, by the way, are you aware of why you do the CL not L every time? Non-dimensional लाइन्स क्यों करते हैं चीज़ें? सब चीज़ें डायमेंशन में क्यों खेलते हैं? डायमेंशन में नहीं खेलते तो नॉन डायमेंशनल में क्यों खेलते हैं? ताकि साइज चेंज कर. हाँ, पैरामीटर. क्योंकि क्या होता है ना कि आप पूरी कमर्शियल एयरक्राफ्ट या बड़ी जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट को इंटरनल में नहीं डाल सकते. तो आप क्या करोगे, स्केल करो. स्केल का भी एक तरीका होता है कि भाई रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे कर दिया, ज्योमेट्री के बेसिस पे कर दिया, मैक नंबर के बेसिस पे कर दिया. तो स्टैटिक स्केलिंग होती है, एक डायनेमिक स्केलिंग होती है. जनरली क्या होता है कि आप ज्योमेट्री के बेस पे कर दिया कि हाँ भाई बड़े वाले एयरक्राफ्ट का एस्पेक्ट रेशियो 10 था तो छोटे वाले का भी 10 ही होगा. तो ऐसे स्केलिंग करके आपने रेनॉल्ड्स नंबर को मैच करा दिया आपने. तो इससे करके आपको क्या कहते हैं, छोटे एयरक्राफ्ट का जो भी पैरामीटर होगा वो बड़े में लग जाएगा.